دول مع محمد فارس. ها؟ السلام عليكم. شنو بابا؟ फिलहाल तो आराम करो, नमाज पढ़ के एडजस्ट कर लें. बैठिए बैठिए إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. شمر نے تازیانہ اٹھایا، عابد بیمار کے نزدیک پہنچا. عابد بیمار کہتے اے بابا کربلا سے تازیانے کھاتا چلا آ رہا ہوں. بابا اب مجھے تازیانے کھانے کی تاب نہیں. اے میرے بابا اب میں تازیانے برداشت نہ کر سکوں گا. ایک مرتبہ سر حسین سے صدا آئی، اے میرے لال زین العابدین، ارے میں کیسے چلوں؟ ارے میرے سینے پہ سونے والی ارے سکینہ راستے میں گر گئی ہے، راستے میں گر گئی ہے. روایت کے فکرے ہیں، عابد بیمار جانا چاہتے ہیں، عابد بیمار بڑھنا چاہتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں اے میرے لال صبر کرو، تیرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں بندھی ہے، تیرے پیروں میں بیڑیاں ہے. آج انصاف سے اتنا سامان ہم لے کر چل رہے ہیں تو ہمارے شولڈر جھکے جا رہے ہیں. ارے عابد بیمار ارے لنگر پڑا تھا اور وہ گلے میں جو تھا وہ بھی خاردار تھا، وہ بھی خاردار توق. لنگر اتنا بھاری تھا کہ توق گلے کے اندر پیوست ہوتا تھا. ہاں عزیزو، ملتا ہے کہ بی بی زینب گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی. کیا دیکھا؟ ایک جگہ پہ ایک محترمہ ہے، ایک بیوی ہے نقاب پوش. ارے سکینہ کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہے، سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے. سکینہ اس محترمہ کی گود میں سو گئی. بی بی زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی تیرا شکریہ، اے بی بی تیرا شکریہ کہ یہ بچی ارے کربلا سے تازیانے پہ تازیانے کھاتی آئی. اے بی بی تیرا شکریہ کہ تو نے اس بچی کے دستے شفقت پھیرا. ایک مرتبہ ارے بی بی نے سر کو اٹھا دیا، اے زینب میں تیری ماں زہرا تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے، اے زینب تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہو. شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے. کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے. کیا یتیمہ کوئی روتی ہے
خدا ایسے یتیموں کو قضا آتی ہے سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا تھی پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے اور پائے سجاد کی لپٹی ہوئی زنجیروں سے پائے سجاد کی لپٹی ہوئی زنجیروں سے نوحہ گری یا ماتم کی صدا آتی ہے اور پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے جو سرے فرش پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے جو سرے فرش عزاتی ہے بی بی پاک آپ کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے بی بی اس مجلس میں موجود ہے ہر عزادار ان کی نگاہوں میں جو مولا حسین کی بارگاہ میں جب بھی ذکر مولا حسین ہو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بی بی اس پرسے کو آپ کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتی ہیں وادی شام سے اور خون عباس سے دلاور کا سر ہے یہ سہیل خاک مقتل سے جو خوشبو وفا آتی ہے وادی شام سے دشمنان اہل بیت لانا
हमारी सूखी रोटली खाता था। अब देखो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहला खोजा ટીવી ના જોડા રહું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અત્યારે અમે અહીંયા મौजूद છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આજે આપણે માશાઅલ્લાહ નમાઝ પઢ્યા અને આપણે ખિદમત કરવાનો એકદમ મોકો મળ્યો ને એ લોકોની ખિદમત આપણે જો કે ગાદલા ફ્રૂટ ખાવાનું એ લોકોને આપ્યા અમને બધા એ ચીજથી અમે ફાયદો ઉપાડીને માશાઅલ્લાહ જોવા જાય તો हमारे आगा साहब बात करता था कि एक साल ये लोग पैसा जमा करे थे आज दिवस माटे तो पहले आ चीज ने सांभळतो હતો કે લોકો કેમ કરતા હશે રાતના કોઈ પોતાનું મકાન પોતાના ગાલા કોઈ આપે પણ આજે હું પોતે અજબ થઈ ગયો અને પોતે હું ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો કે કઈ તરીકેથી એ લોકો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખિદમત કરે છે ખાવાનું પીવાનું અને હમણાં રાત સુધી શું શું હાલશે એ આપણે અંદાજો કરી શકીએ છીએ ફલ આપણે નસીબ થાય છે ઇન્શાઅલ્લાહ થોડીક વાર બાદ આપણે બધાએ જમી તો લીધા થોડીક વાર આપણે 12 જણા કે ટેરશું એ પછી આરામ કરશું કારણ કે આગળ કીધા કે 8-9 વાગે આપણે સૂઈએ જવાનું છે કારણ કે નમાઝ બાદ પછી ઓલું નાસ્તો બ્રેકફાસ્ટ કરીને પછી હાલવાનું શરૂ થઈ જશે તો એટલે અમુક મોમિનીને પગમાં જરાક તકલીફ પર છે ને એ લોકો જરાક આરામ પણ કરશે અને દવા વગેરે પણ પીવાની છે મને પણ જો કે એકદમ ગ્રીપ થઈ ગયું છે પણ કાંઈ વાંધો નથી આવતું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે કાંઈ મહેસૂસ થાય છે કે મને ગ્રીપ થઈ ગયું છે બિલકુલ નથી થતું પણ હમણાં આસ્તે આસ્તે તમે પણ ખબર પડી જશે કે મને પણ ગ્રીપ થઈ ગયું છે એટલે રાતના આપણે બધાએ દવા પી કરી ને ઇન્શાઅલ્લાહ સવાર સુધી આપણે ફિટ રહેશું ઇન્શાઅલ્લાહ થેન્ક યુ સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ બિસ્મિલ્લાહિર रहमानिर रहीम અમારી દરમિયાનમાં માશાઅલ્લાહ આગા સાહેબ મौजूद છે અને તમે પણ એમની મુલાકાત પહેલે કરી જ લીધા હતા બહુ જ ખુશી થાય છે ને હમણાં આપણે નમાઝ જમાત પર પહેર્યા ને બહુ સરસ વાત કરી રહ્યા આગા નમાઝ બાદ કે જે પણ કોઈ રસૂલ ખુદા ઉપર સલવાત નથી મોકલતો રસૂલ ખુદા ફરમાવે છે કે એ લોકો મારી અને મારી અહેલ બેત ઉપર એ લોકો જફા કર્યા છે એટલે આપણે सलवार पर जाने नाम साबित तो अपने सलवार जरूर मोकले मौलाना अभी हमने देखा कि इन्होंने कितनी खिदमतें की है माशाल्लाह कौन है कि जो अपना घर दे बहुत मुश्किल की बात है मौलाना लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा कुछ वजाहत कर सकते हैं बड़ी मेहरबानी होगी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। बहरहाल खुदा का लाख लाख शुक्र कि परवरदिगार ने हम सबको ये मोहलत दी माबूद ने इस लायक समझा ज़हरा ने हम सबको इस लायक समझा कि उनके फ़र्जंद के इस रास्ते में हम सबको चलने की तौफीक दी बेशक। बहरहाल जब से सुबह से हम लोग चले हैं जगह जगह पे देख रहे हैं माशाल्लाह इराक़ी खिदमत इनकी वाक़ईन खिदमत करते हैं। सद्दाम के ज़माने में इन्हें इतनी इजाज़त नहीं थी कि अगर घर में कलर अगर इनका ख़राब हो गया है तो ये कलर कर सकें। सद्दाम के ज़माने में इनको इजाज़त नहीं थी कि खुलकर आज़ादारी कर सकें खुल के मातमदारी कर सकें। सद्दाम के जाने के बाद ये आज़ादारी की आज़ादी खुद इनकी अपनी आज़ादी कि इन्होंने अभी इस वक्त मिलता है कि पूरे इराक़ का दस्तूर है कि ये इराक़ी साल भर कमाते हैं उसको किनारे रखते जाते हैं कहते हैं ये पैसा अपने बच्चों से हाथ मत लगाना ये 40 का पैसा है ये 40 के लिए है मौला हुसैन के ज़ायरों के लिए है और जो इनसे हो सकता है यानी आप जगह जगह जाएँ बेहतरीन खाने जो इनके अपने बहरहाल जो इनके जो खाने खाए जाता अपने लिहाज से हर तरह के अभी हम लोग को भी यहाँ माशाल्लाह मोर रोटी और फल हमारे सामने मौजूद है
सेब संतरा सारी चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ ला कर पेश कर रहे हैं और ऐसे खिदमत कर रहे हैं जैसे उनके कोई घर का आदमी आया हुआ हो। बल्कि उससे बढ़कर रास्तों में कई जगह पर तो ऐसा भी देखा गया कि लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के पैरों की मालिश दे रहे हैं, खुरमा लेकर खड़े हुए हैं, कोई कुछ लेकर खड़े, जब नहीं लेते कहते तुमने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि तुम ज़ाहिर हुसैन हो, एक खुरमा उठाकर हमारा खा लो। खिदमत का जज्बा इनके अंदर वाक़ई परवरदिगार ने दिया है। इनकी औरतें बैठती हैं, औरतों का पैर दबाती हैं, इनके मर्द बैठते हैं, मर्दों का पैर दबाते हैं। जिस तरह जो खिदमत हो सकती है ये करते हैं। अपने घर को पूरे ये खाली कर देते हैं, यानी पूरी फैमिली एक कमरे के अंदर आ जाती है। लेकिन ज़ाहिर हुसैन के लिए जो इनसे हो सकता है, बाहर सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी, जैसे ये मौक़िफ़, ये कमरे बने, इसको मौक़िफ़ बोला जाता है। इसमें अगर जगह नहीं हुई, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियों पर बैठाकर अपने घर में लेकर जाते हैं। बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम, गर्म पानी रखा रहता है, आकर सामने रख देंगे, कहेंगे अपने पैरों को जो आप इसके अंदर डालिए ताकि थकान उतरे। अपने हाथों से पैरों को मसाज देते हैं, अपने हाथों से पैरों को मसाज देते हैं। और ये नहीं कि फ़कीर हैं, इनमें एक से एक पैसे वाले लोग भी हैं, एक से एक बावकार लोग भी हैं, एक से एक बाइज़्ज़त लोग भी हैं। लेकिन मौला हुसैन के लिए अपने आप को कुछ नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। खुदा इंशाअल्लाह इन लोग की वाक़ई खिदमत को कबूल करे कि जो इन्होंने खिदमतें की हैं। हमारे बिरादर ये सामने खड़े हुए हैं, इस सामने खड़े हुए हैं कि हम लोग के ये मेज़बान कि इन्होंने ज़हमत की है, कि इन्होंने बहरहाल ज़हमत की है हर तरह से, और यहाँ पर हम लोग इनके शुक्रगुज़ार हैं। बहरहाल इनसे ज़रा सा आप सवाल करिए कि ये इस वक्त जो इन्होंने हम सब को मेहमान किया है, क्या सोच के मेहमान किया है? أخدم لأن عقيدتنا عن نتابع عقيدتنا إمام، احنا من زمان، احنا من زمان صوت احنا من صغر تقريبا الموكب 1999 تأسس هذا الموكب، يعني من أول ما وعيت للدنيا لحد الآن احنا نخدم زوار الحسين بالزيارة الأربعينية، ويعني من أجدادنا، يعني مو هسه، يعني شريد الزاير من أكيل من منام، مرات ناخذ لبيوتنا من يعني من كل يعتاز الزاير. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اجداد بھی اسی طریقے سے جو ہے خدمت کیا کرتے تھے زوار امام حسین علیہ السلام کی، سونے سلایا کرتے تھے اور کھانا دیا کرتے تھے، اور ہم بھی جو ہے آج جو ہے زوار امام حسین کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ بہرحال ہم لوگ شکر گزار ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی زحمت ہم لوگوں کے لیے کی ہے۔ ہم پورے قافلے والے المجتبیٰ والے ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم کو یہ مسکن عنایت کیا، یہ رہنے کی جگہ عنایت کی ہے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار شہزادی کونین کے صدقے میں ان سب کو ایسے ہی خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ پروردگار سے دعا ہے میرے معبود ہم سب کو بھی توفیق دے دے کہ صحیح معنوں میں ہم ظاہر بن جائیں۔ پروردگار تجھ سے التجا ہے معبود، مانا کہ ہم لوگ نے گناہ کیا، ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار ہے کہ ہم نے گناہ کیے معبود، لیکن اس راستے میں جس طرح کا بھی انسان ہو، روایات موجود ہیں کہ پروردگار حسین کے احترام میں اسے بخش دیتا ہے، حسین کے احترام میں اسے بخش دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ میں عرض کر دوں آپ کے نصیحت کے لیے۔ مشہد المقدس میں ایک شخص تھا جو بہت شراب پیا کرتا تھا، ایک دن محرم بہرحال شروع ہو چکا تھا، محرم کے احترام میں اس نے شراب کچھ دن چھوڑ رکھی تھی، لیکن جس مجلس میں یہ جاتا تھا لوگ اس کو شرابی کہہ کر مجلس سے باہر کر دیتے تھے، مجلس میں نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دن شخص نے دیکھا کہ ایک مجلس ختم ہوئی، مولانا ماما لگائے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سناٹے میں پہنچا، ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد مولانا صاحب کو روکا، کہتا ہے مولانا صاحب مجھ کو لوگوں نے مولا کی مجلس سننے نہیں دیا کیونکہ میں شرابی ہوں، آپ میرے لیے مولا کی مجلس پڑھو۔ کہتے ہیں مولا کی مجلس تم اکیلے، ہم اکیلے کیسے مولا کی مجلس پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے کچھ بھی ہو۔ مولانا نے انکار کیا کہ نہیں ہو سکتی مجلس۔ اس نے ایک مرتبہ چاقو نکالا
कहता अगर आपने मजलिस नहीं पढ़ी तो मैं आपको ही कत्ल कर दूंगा। तो कहते हैं मजलिस के लिए मिंबर की ज़रूरत है। उन्होंने बहाना किया कि मजलिस के लिए मिंबर की ज़रूरत होती है, ऐसे मजलिस नहीं होती, कुर्सी हो मिंबर हो। एक मरतबा ये शख्स झुकता है और झुकने के बाद कहता है ये लीजिए मिंबर, पुष्ट पे आप बैठिए और मुझको मजलिस हुसैन सुनाइए। बहरहाल उन्होंने मजलिस पढ़ी, इसने गिरिया किया और उसके बाद कहता है कि ये जो मजलिस हुई है इसका अज्र क्या शहज़ादी देंगी? कहते क्यों नहीं, मजलिस का शहज़ादी ज़रूर देंगी। कहा जो आपने पढ़ी आपको भी अजर मिलेगा? कहा हाँ मुझे भी मिलेगा। कहा कि मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मुझे हर चीज़ का एहसास है। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मौला हुसैन की मजलिस सुनने और सुनाने पर अजर मिलेगा, तो क्या मौला हुसैन अपने मिंबर को जला देंगे? क्या मौला हुसैन जिस जगह पर उनका जाकिर बैठकर मजलिस पढ़ी है उस जगह को जला देंगे? मैं इस वक्त हुसैन का जाकिर तो नहीं था, हुसैन के लिए मैं कुर्सी बना था। इस जाकिर ने मेरे पुष्ट पर बैठकर मजलिस हुसैन पढ़ी है। उसी दिन से उस शख्स ने तौबा कर ली कि आज मैं हुसैन के लिए मिंबर बना, आज मैं हुसैन के लिए मिंबर बना। आज से मैं तौबा करता हूँ कि मैं इस जगह पर अब इसके बाद मैं शराब न पीऊँगा। बहरहाल हम एक और हमें खुशी है कि हमारे दरमियान हमारे भाई बहुत ही मुहिब अहल बैत खुदावंद आलम ने जिनकी ज़बान में सोच दिया है कि हमारे भाई जनाब मुसैयब रिजवी साहब के भी बहरहाल हमारे लिए खुशहाली है कि साथ साथ शहज़ादी को पुरसा देने चाहिए। मैं इनसे एक सवाल करूँगा, ये मेरे भाई मुसैयब ये बताएं कि हम रास्ते में जो चल के आए हैं, आपने चलते वक्त कहा था मौलाना मैं पहली मर्तबा चल रहा हूँ, मौलाना शायद मैं चल ना सकूँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा रास्ता पूरा हो चुका है। आज एक पूरे दिन आप चले हैं और कहीं पर भी ये ना देखा कि आपको थकावट का एहसास हुआ। आप क्या सोच कर चले, क्यों नहीं आप पलट कर चले गए? वाकई ये बात मैं अपने मौला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं ये सोच रहा था और मैं जनाब अमीर इस्लाम की बारगाह में जब गया तो मैंने कहा मौला मैं मौला हुसैन की बारगाह में साल में 2 मरतबा हूँ। एक अरफ़े की मुझे तमन्ना है कि मैं अरफ़ा मौला हुसैन की बारगाह में करूँ और चेहलुम के लिए मौला मैं कोई चेहलुम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, मगर आज इसको देखते हुए मेरी मौला ने मैं यानी हिम्मत मेरी बन गई, वो मैंने तौबा की कि नहीं मौला मैं चेहलुम पे आऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये मैंने देखा लोगों को किस तरह से लोग जा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा मरीज़ लोग चल रहे हैं। तो ये रास्ता हमें वाकई नहीं पता चला जिस तरह से मौला ने ये रास्ता हमारा काटा है। मैं तो आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने लोग हैं यहाँ, जितने हमारे इंडिया से लोग आए हैं, रीनियन से आए हैं, सबका शुक्रिया। ख़ासकर खोजा टीवी में हमारे सलीम भाई और दीगर हज़रात मेरे मोहतरम आगा साहब, ये सब लोग हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये शरफ़ बख्शा आगा भोजानी मुख्तार भोजानी साहब और दीगर लोगों ने कि मैं आप लोगों के साथ शामिल हुआ और एक ये पुररौनक तरीके से बहुत हमारा सफ़र अच्छा कट रहा है और इंशाअल्लाह ये होता रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा मौला हुसैन। और हम भी आपका तहे दिल से मौलाना साहब और मुसैयब साहब मौलाना साहब का भी और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत साथ दिया, बहुत कोऑपरेट किया और बस ये आपकी मोहब्बत हमेशा हमें याद रहेगी। और ये पैगाम जो आगा साहब ने बेहतरीन दिया, आपने अंदाज़ा किया कि माशाल्लाह जो भी इस बात को सुनने वाले हैं कितनी इंफॉर्मेशन मौलाना रखते हैं। मैंने सिर्फ इनको एक सवाल पूछा कि मौलाना आप उसकी वजाहत करें कि आपने इसको कैसा पाया है कि वो कैसे खिदमत करें, सिर्फ वजाहत। आपने एक ही जुमले में कई बाब खोल दिए और इसमें से कई बाब में आप हमको जो है वो कई की फ़िक्रें इसके अंदर मौलाना आपने, खुदा आपके इल्म में और इजाफ़ा फरमावे, आपकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमावे। और आप इसी तरह से मौलाना जो आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत है, ये और हम तक जो है वो पहुँचता रहे। शुक्रिया। मैं भी बहरहाल शुक्रगुज़ार हूँ आप हज़रात के, खोजा टीवी के लिए कि जो ये ज़हमत कर रहे हैं आप लोग अहले बैत। इंशाअल्लाह शहज़ादी कौनैन आप सबको अजर इनायत करें और आपकी इन ज़हमत को अपनी बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल कर लें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा वाला खोजा टीवी ना जो ना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब अपने जोया कि કેટલું બહેતરીન અંદાજ થી આગા સાહેબ જે છે આપણે મેસેજ ગયા અને અત્યારે આ રૂમ તો તમે જો નાનો છે પણ એકદમ
યુનિટી મોહબ્બત પ્યાર એની અંદર આપણે દેખાય છે પ્યાર હંમેશા ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી આપણે વારંવાર બયાન કરતા રહીશું અને કાલે જરૂર આપણે આ સફર પર તય કરશું પછી હું તમારી ખિદમતમાં જરૂર હાજર થઈશ તો ત્યાર સુધી મુજ હકીરને તમે રજા આપો ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મુલાકાત થશે થેન્ક યુ